بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے روحانی راز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے دل، روح اور تقدیر تینوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ راز ہے درود شریف اور درود ابراہیمی کی اصل طاقت۔ وہ طاقت جسے اگر انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی رحمت، برکت اور سکون سے بھر جائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل وہ اپنی روح پر رحمت الہی کی بارش کر رہا ہوتا ہے۔ درود صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ نورانی رابطہ ہے، ایک ایسا تعلق جو بندے کے دل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ جب انسان اخلاص سے درود پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد رحمت کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دل سے درود پڑھنے کا عادی بن جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم اس دعا کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جسے اللہ نے اپنی قبولیت سے مزین فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک مجلس میں فرماتے ہیں، جو بندہ روز درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ اپنی معرفت کے سمندر بہا دیتا ہے۔ درود وہ روشنی ہے جو دل کو پاک کرتی ہے اور درود ابراہیمی وہ چراغ ہے جو انسان کی قسمت کو روشن کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت درود اتنا خاص کیوں ہے؟ تو شیخ جیلانی مسکرائے اور فرمایا، کیونکہ جب تو درود پڑھتا ہے تو اللہ بھی تجھے یاد کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہ دولت ہے نہ شہرت، اصلی طاقت یہ ہے کہ جب تیرا نام لیا جائے تو عرش سے آواز آئے، یہ وہ ہے جو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ درود پڑھنے والے کے دل پر کبھی غم کا بوجھ نہیں ٹھہرتا۔ حضرت شیخ جیلانی فرماتے ہیں، جس زبان پر درود شریف زندہ ہے اس دل پر غم کا سایہ نہیں رہتا۔ درود ایک ایسی دعا ہے جو بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ کنجی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان بند دعاؤں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو یاد رکھو، فرشتے تمہارے نام کو عرش پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے، لہذا اس پر بھی میری رحمت نازل کرو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، جو اپنی زبان پر درود کو عادت بنا لیتا ہے اس کے لیے موت بھی رحمت بن جاتی ہے۔ درود روح کو نور بخشتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو ایسی قربت عطا کرتا ہے جو صرف عاشقوں کا نصیب ہے۔
दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज में ऐसी तासीर है कि वो बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दुरूद वो नूरी दरवाजा है जिसके पार बंदा अल्लाह की रजा देखता है। जो उस दरवाजे से गुजर गया उसके लिए दुनिया व आखिरत दोनों आसान हो गए। दुरूद इब्राहिमी की तासीर इस कदर गहरी है कि अगर कोई शख्स दिल से इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसे रोज पढ़ता है तो उसके गुनाह मोम की तरह पिघलने लगते हैं और उसकी रूह रोशन हो जाती है। एक दिन एक मुरीद ने हजरत शेख जिलानी से अर्ज किया, या सैयदी, मैं दिन रात इबादत करता हूं मगर दिल में सुकून नहीं आता। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ फर्जंद, इबादत तो जिस्म की हरकत है मगर दुरूद दिल की जिंदगी है। तू दिल को जिंदा कर, इबादत खुद जिंदा हो जाएगी। फिर आपने फरमाया, हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी को मामूल बना ले, देख तेरा दिल कैसे नूर से भर जाएगा। दुरूद सिर्फ जबान का जिक्र नहीं बल्कि दिल का सफर है। ये वो सफर है जिसमें बंदा अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता चला जाता है, और जब वो करीब होता है तो अल्लाह भी उसके करीब हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। ये आयत दरअसल दावत है, दावत कुर्बत, दावत मोहब्बत, दावत नूर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके एक एक हर्फ से रहमत के दरख्त उगने लगते हैं। वो दरख्त अर्श से लेकर जमीन तक साया करते हैं। यानी दुरूद न सिर्फ दिल को पाक करता है बल्कि तकदीर में बरकत के दरख्त लगा देता है। एक और रिवायत में आता है कि हजरत जिलानी के एक शागिर्द सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। दुनियावी मुश्किलात, कर्ज और दिल का बोझ उन्हें घेरे हुए थे। उन्होंने शेख से मदद चाही। आपने फरमाया, दुरूद इब्राहिमी को अपनी सुबह और शाम का साथी बना ले। जो दुरूद पर कायम रहता है उस पर आफतें कायम नहीं रहती। शागिर्द ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। कर्ज उतर गया, दिल मुतमईन हो गया और चेहरे से नूर झलकने लगा। दुरूद का असल राज ये है कि ये बंदे और रब के दरमियान नूरानी पुल है। जब बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह खुद उस पर दुरूद भेजता है, यानी रहमत भेजता है, मग़फ़िरत भेजता है, ऐन और उसकी दुआएं कबूल करता है। हजरत जिलानी फरमाते हैं, दुरूद वो खुशबू है जो कब्र तक नहीं रुकती बल्कि क़यामत के दिन बंदे के चेहरे से महक बनकर उठती है। दुरूद की 3 बरकतें शेख जिलानी के मुताबिक, 1 दिल की सफाई, दुरूद दिल के जंग को मिटा देता है। 2 रूह की बुलंदी,
दुरूद पढ़ने वाला रूहानी तौर पर बुलंद मकाम हासिल करता है। 3. दुआओं की कबूलियत। दुरूद के बगैर दुआ आसमान तक नहीं जाती। दुरूद इब्राहिमी की खासियत। ये वो दुरूद है जिसमें अल्लाह ताला ने नबियों का जिक्र किया, इब्राहिम की शान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा, ताकि उम्मत को पता चले नबियों की इज्जत नबियों के सरदार के जिक्र से कायम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जब बंदा ये दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत पड़ती है, और जब वो नजर पड़ जाए तो समझ लो किस्मत के दरवाजे खुल गए। एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि कयामत बर्पा हो गई है, लोग अजाब से लरज रहे हैं, और कुछ चेहरे ऐसे थे जो चांद की तरह चमक रहे थे। पूछा गया, ए रब, ये कौन लोग हैं? निदा आई, ये वो हैं जो दुनिया में दिन रात दुरूद पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी जबानों को दुरूद के जिक्र से पाक रखा, इसलिए आज उनके चेहरे नूर से भर गए हैं। शेख जिलानी ने फरमाया, जो दुरूद इब्राहिमी को मोहब्बत से पढ़ता है उसके लिए दुनिया कब्र नहीं बनती, बल्कि कब्र उसके लिए जन्नत का दरवाजा बन जाती है। ये वही दुरूद है जिसमें नबियों के सरदार का जिक्र है, और जब बंदा उसका विर्द करता है तो फरिश्ते उसके घर के इर्द गिर्द रहमत के दायरे बना देते हैं। दुरूद इब्राहिमी एक रूहानी कुंजी है जो दिल के दरवाजे खोलती है और बंदे को अल्लाह के कुर्ब तक ले जाती है। शेर जिलानी कहते हैं, दुरूद पढ़ने वाला वो है जो खुद खामोश रहकर भी अर्श को हिला देता है। उसकी दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि उसके लबों पर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। एक दिन एक मुरीद ने पूछा, या सैयदी, दुरूद पढ़ने से दिल में क्या तब्दीली आती है? आपने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला अपने अंदर दो चीजें महसूस करता है, एक सुकून, दूसरा यकीन, और ये दोनों वो दौलतें हैं जिनसे दिल अमीर हो जाता है। दुरूद सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, ये एक दावत है, दावत मोहब्बत, दावत हुजूर, दावत कुर्ब। दुरूद वो रिश्ता है जो बंदे को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से जोड़ देता है। और याद रखो, जिस दिल में दुरूद की खुशबू बस जाए वो दिल कभी गुनाह की बदबू नहीं सूंघता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, दुरूद की महफिल लगाओ, क्योंकि जहां दुरूद पढ़ा जाता है वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं। सोचो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम तुम पर पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कथीरा वसब्बिहूहु बुकरतन वासीला। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। दुरूद इब्राहिमी इसी आयत का अमली इजहार है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम जिक्र इलाही में शामिल हो जाते हो। दुरूद की बरकतों का खुलासा
शेख जिलानी के मुताबिक 1. दिल को हयात मिलती है। 2. रूह नूरी बन जाती है। 3. कब्र सुकून का बिस्तर बन जाती है। 4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती है। 5. आखिरत में पिले सिरात आसान हो जाता है। शेख जिलानी ने फरमाया, दुरूद वो तोहफा है जो जमीन पर पढ़ा जाता है और आसमान पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया जाता है। जब तुम एक दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाह मिटाता है और तुम्हारे दर्जे बुलंद करता है। लिहाजा ऐ सुनने वाले, अपनी जबान को दुरूद से मुअत्तर कर लो, अपने दिल को मोहब्बत मुस्तफा से रोशन कर लो और अपनी जिंदगी को नूर में बदल दो, क्योंकि जो दुरूद पढ़ता है वो कभी अंधेरे में नहीं रहता। अल्लाह उसके दिल में अपनी रोशनी डाल देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पढ़ने वाले के होंठ खामोश रहते हैं, मगर अर्श उसके जिक्र से गूंजता है। ये जिक्र मुस्तफा है जो दिलों को जिंदा करता है, रूहों को जगाता है और बंदे को उसके रब से मिला देता है।